Assalamu alaikum. My name is Aftab Aleem Farooqi. I am assistant professor in biochemistry at Government Degree Science College Malir, Karachi. So, this is my second lecture. In the previous lecture, first lecture which I have sent on online, where the topic was ionization of water, weak acids and weak bases. That was my first lecture. Now today I am delivering my second lecture, which is the topic is weak interactions in an aqueous environment, and the topic is pH. So dear students, first of all I would like to give some details regarding the significance of pH value. So first point is that pH is a measure of the acidic or basic alkaline nature of a solution. That is, concentration of hydrogen ion activity in a solution determines the pH. So the pH scale ranges from 0 to 14, which is the most acidic. A pH is of 7 is neutral and 14 is the most alkaline. I would like to give some detail about this point, that pH scale is started from 0 until the 7 and then so on, the 14. So 7, the pH is determined the neutral pH. This pH this pH determines when the total number of hydroxyl ion concentration or hydrogen protonic plus ion are equal. So this pH is called neutral pH. While the pH ranges from 0 to 7, 0 to 6.9, this will determine the acidic side pH, while the pH is above 7 to till the 14, this will determine the alkaline or more basic pH. So the pH scale is logarithmic, and as a result pH 8 is 10 times more alkaline than 7 and pH 9 is 100 times more alkaline. So we know that our blood and body fluids that surround the cells are slightly alkaline. That is, pH ranges from 7.2 to 7.4. If blood pH drops down to 6.9, a person falls into coma and even dies. So the student understand this point, that if the slight changes in the pH range and which may be lower down up to 6.9, this is the acidic in pH. So this is the acidotic coma condition will be created in the patient. So patient will be down in prolonged unconsciousness, and if this condition is persistent, so patient may be died. So this is very important point regarding the pH of the blood. Okay. Number 2 point, fortunately our blood has mechanisms that help it to keep its balance and prevent great changes of pH value. It is breathing, lungs, then to called buffer systems, so-called buffer systems in body fluids, and selection of hydrogen ion in kidneys. Number 3, our body is forced to constantly fight to neutralize acids, which is in time impoverish the reserves of our neutralization system. Number 4 point, alkaline water contains more hydroxyl ions which liberate more oxygen in the blood. In fact, if the blood is only a bit more alkaline, from 7.3 to 7.45, there will be more approximately 2/3 more oxygen in it. अब देखें यहाँ पर मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा लिबरेट होगी. जब ऑक्सीजन ज़्यादा लिबरेट होगी तो वहाँ पर जो है वो 2/3 इसकी इंक्रीज कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, और अवेलेबल इन ऑल सेल्स इन आवर बॉडी. तो इस तरह बॉडी में तमाम सेल्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. इट इज़ ऑल्सो डिस्कवर्ड that mutated receptors which cause cancer are unlikely to appear if pH value of cells is at healthy alkaline levels. Number 6 point, negative hydroxyl ions from the alkaline water neutralize free radicals, which acts as a strong antioxidants. So the students, I have given some brief
introduction about the significance of pH in biological systems, mainly in living organisms, especially in human beings. So first of all, introduction of pH, that is in 1909, Sorensen scientists suggested that the hydrogen concentration of aqueous solutions would be better expressed as pH values, which is logarithmic function of active mass of hydrogen concentration. This is by definition pH is a negative log of hydrogen concentration. It is known as pH is equal to negative log of active mass of hydrogen concentration. अब देखिए सोरेनसन साइंटिस्ट ने क्या कहा था. उसका कहने का मकसद ये था कि कोई भी एक एक्वा सॉल्यूशन है उसमें जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को बहुत अच्छे अंदाज में जो एक्सप्रेस किया सकता है वो उसकी पीएच की लॉगरिथमिक वैल्यूज़ की वजह से, पीएच की लॉगरिथमिक फंक्शन के तहत आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर पीएच जो है इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है और इसको जो है एक इक्वेशन में आप इसको मेंशन कर सकते हैं. pH is equal to negative log of active mass of hydrogen concentration. So pH is the negative value of the power to which 10 must be raised to give actual hydrogen concentration in moles per liter. This is moles per liter is the unit. So pH is equal to 1 over active mass of hydrogen concentration. So according to pH scale, 7 represents the neutrality, and as the pH becomes smaller, so hydrogen concentration वुड बी ग्रेटर. अब देखें यहाँ पर जो है दोनों में एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है पीएच और एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में. अगर एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगी. सो स्टूडेंट, पीएच इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन. द कंसंट्रेशन एंड अल्कलाइनिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज एज द पीएच रेजेस अबव 7. It means that pH is directly proportional to hydrogen concentration. pH is directly proportional to active mass of hydrogen concentration. क्या इसका मतलब ये हुआ कि at pH 7, this is a neutral pH. When the pH is increases, therefore the media will be much more increased hydrogen concentration. As the pH will be goes towards the increases, the hydrogen concentration will be much more increases. So pH applied accurately to the solution at ordinary temperature, where the value of pKw is 14. So the meaning of neutral, acidic and basic pH. अब यहाँ हम आपको बताएंगे कि न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक pH क्या होती है. So water being neutral in character is considered as the reference liquid for the determination of neutral, acidic and basic pH. तो वाटर को जो है एज ए रेफरेंस लिक्विड के तौर पर हम एज्यूम करते हैं जो कि किसी न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक पीएच को डिटरमिन किया जा सकता है. इट इज़ फाउंड दैट द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज अबव विद इट्स नेगेटिव साइन. क्या कहा? It is found that the hydrogen concentration expressed as above with its negative sign, if changed into positive, can be used and by taking negative log of active mass of hydrogen concentration. Negative log of active mass of hydrogen concentration is equal to negative log of active mass of 10 to the power minus 7. मैंने पहले ही बताया था कि आयन कॉन्सेंट ऑफ वाटर, आयन कॉन्सेंट ऑफ वाटर में KW क्या होता है कि उसमें एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन बराबर होती है. जब वाटर डिस्पर्स होता है, तहलील होता है, डिकम्पोज होता है, तो उसमें इक्विमोलर कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर आपको मिलते हैं. तो यहाँ पर जो नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁷ को. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 10⁻⁷ ऊपर वाली इक्वेशन में देख रहे हैं वो जो ऊपर पावर है वो बाहर आ जाएगी और वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा. तो अब यहाँ पर देखें आप इसमें कि बाहर है साइन माइनस की, अंदर है -7, तो माइनस इंटू -7 प्लस साइन. तो अब यहाँ पर यू नो दैट log 10 इज इक्वल टू 1. तो नेगेटिव लॉग इज एक्सप्रेस बाय P. देयरफॉर अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नेगेटिव लॉग को एक्सप्रेस करते हैं P से, तो नेगेटिव लॉग वो रिप्लेस हो जाएगी P से. तो देयरफॉर pH इज इक्वल टू 7. अब आते हैं मीनिंग of the term pOH and pKw.
टू एक्सप्रेस डिग्री ऑफ बेसिसिटी pOH इज़ यूज्ड। अब देखें, अगर आपको pH और ये बेसिक साइड pH को एक्सप्रेस करना है तो बेसिक साइड ऑफ pH जो है वो POH will be used. So we know the neutrality of water is active mass of hydrogen ion is equal to active mass of hydrogen ion concentration. You know very well. As the same 10 to the minus 7 moles per liter, therefore the hydrogen concentration will be same 10 to the minus 7 moles per liter. So by taking the negative log of hydrogen ion concentration, अब यहाँ क्या करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे pH निकाली थी वैसे pH निकालेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। तो नेगेटिव लॉग एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 to the minus 7। तो नेगेटिव लॉग एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करते हैं, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। नेगेटिव लॉग जहाँ पर जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, नेगेटिव लॉग 10 और फिर पावर एक्सपोनेंशियल वो बाहर आ जाएगी, वो कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके उसको -7 इंटू -7 प्लस कर दिया है और log 10 इक्वल टू 1। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, so negative log is represented as P, so pOH is equal to 7. Okay, so now we are coming towards the pKW. This is Daston constant of water. So pKW is equal to negative log of KW, but as we know that active mass of hydrogen is equal to KW. This is the ion constant of water. So the taking negative log on both sides, अब क्या करेंगे, दोनों का नेगेटिव लॉग लेंगे हम, दोनों साइड्स का। तो यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग KW इज इक्वल टू 14। नाउ KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10 to the minus 14। सो नेगेटिव लॉग इज टेकन एज P। ओके, तो नेगेटिव लॉग दोनों तरफ जो है वो P से रिप्रेजेंट करेंगे, तो PH प्लस POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the minus 14, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको pH प्लस POH ये आप इज इक्वल टू बराबर होगा नेगेटिव लॉग 10 to the minus 14। नाउ अब क्या करेंगे कि नीचे जो 10 to the minus 14 है, ये पावर है, ये नीचे बाहर आ जाएगी और कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो इस तरह से वही जो सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस इंटू लॉग -14 नीचे आ जाएगा और लॉग 10 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर बन गया 14। तो अब जब P14 जो है ऊपर पता है pKW, ठीक है, pKW क्या है, डायस्टन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो डायस्टन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या है, ये वो आपका जो pH प्लस POH वो टोटल निकला, क्या निकला, टोटल का डायस्टन कांस्टेंट ऑफ वाटर जो कंसिस्ट करता है pH प्लस POH पर। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। सो 7 + 7 इज इक्वल टू 14। समझ आ गया। तो इस तरह से अब आते हैं pKa। pKa इज द नेगेटिव लॉग ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी कि कितना कोई एसिड जो है वो कितना डिसोसिएट होता है, तो उसकी आयनाइजेशन कितनी होती है, उसको pKa से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एसिड कितना डिसोसिएट हुआ, कितना हाइड्रोजन प्रोटॉन प्लस आयन से लिबरेट हुए, उसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट को pKa से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ द pH एट विच द एसिड इज हाफ न्यूट्रलाइज्ड एंड हाफ कन्वर्टेड टू salt. So student, I have completed the topic pH and its derivational proof. Now I am coming towards the pH related numericals. So students, in BSc paper 1 paper setter may ask the question regarding pH numericals. So first of all example is ion product of water Kw at 25 degrees centigrade is 10 to the minus 14. Find the pH of water, and you know very well how the 10 to the minus 14 is find out. Okay, so solution is हाँ कैसे इसे सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। द डायस्टन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, आपको पता है कि वाटर डेसोसिएट होगा तो प्रोटॉन प्लस आयन हाइड्रोजन में डेसोसिएट होगा। ओके, सो दस active mass of hydrogen ion and active mass of proton plus ion will be the same. So now Kw, it means water constant is equal to active mass of hydrogen into active mass of hydrogen concentration is equal to both the same. So this is the Kw is 10 to the minus 14. Now taking the roots of Kw. So अब यहाँ पर क्या करते हैं कि Kw जो है 10 to the minus 14 इसका रूट लेते हैं। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या करेंगे, 10 to the minus 14 पुट करने के बाद उसको अंडर रूट प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा 10 to the minus 7। तो ये कहलाता है एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयन 10 to the minus 7। अब वहाँ पर उसे क्या फाइंड आउट करने को कहा, उसने कहा कि आप क्वेश्चन में देखिए फाइंड द pH ऑफ वाटर।
सो पीएच फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में फार्मूला पुट कर देंगे 10⁻⁷ को। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे हम, आप देखें वही जो पहले किया था, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 मल्टीप्लाई करेगा अंदर पावर 10⁻⁷ से। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे पहले किया था रेडिएशन इक्वेशन प्रूफ करने में दौरान, वो सिंप्लीफाई करने के बाद 10⁻⁷ बाहर आ जाएगी इस पावर और वो कोफिशिएंट बन जाएगा और pH 7 आपकी कैलकुलेट हो गई। एक और एग्जांपल देखें, एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड द KW ऑफ वाटर 16.9 इंटू 10⁻14 फाइंड द pH। इसे भी क्या करना है, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, आपको फार्मूला दे रखा है, रूट लें आप एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, आपको नहीं देखें कि पीएच मालूम करना है। तो आपको पीएच मालूम करने के लिए यहाँ पर इन्होंने, अब देखें ये बात आप जानते हैं अच्छी तरह कि जो वाटर कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वो बिल्कुल सेम होता है एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन और एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन दोनों की जो है कंसंट्रेशन बराबर होती है। तो फार्मूले में ये आप एग्जाम्पल में ये देखें कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, वो पीएच मालूम करनी है। तो इसका मतलब ये होगा KW में आपको एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो आप उसको राइट लेफ्ट साइड पे ले आएँ और KW की वैल्यू पुट कर दें 16.9 इंटू 10⁻14। तो इस तरह से क्या होगा कि इसको दोबारा आप रूट प्रेस कर दें और रूट प्रेस करने के बाद अब यहाँ देखें आप कि इसमें आपने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने यहाँ पर इस तरह से, देखें 16.9 इंटू 10⁻14 अंडर रूट इसका लिया, तो वही आप प्रेस करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो आएगा 4.1 इंटू 10⁻7। तो इस तरह से ये आ गया आपका pH इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, फार्मूला आपको पता है pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, फार्मूला पुट और जो वैल्यू निकाली है एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में पुट कर दिया 4.11 इंटू 10⁻7। इस तरह से फिर क्या करेंगे, वही जो पहले काम किया कि अब नेगेटिव लॉग 10 जो है वो अंदर मौजूद दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो नेगेटिव लॉग 10 मल्टीप्लाई करेगा 4.11 से, तो वो बाहर आ जाएगा और नेगेटिव लॉग की वैल्यू मल्टीप्लाई करें 10⁻7 को, तो -7 लॉग 10 इंटू 10⁻7। अब वही क्या करेंगे कि लॉग 10⁻7 की नेगेटिव लॉग प्रॉपर्टी को ख़त्म करेंगे, वो बाहर आ जाएगी पावर, कोफिशिएंट बन जाएगा और फिर -7 लॉग 10 आप आता है 1। तो इस तरह से -7 जो -7 प्लस, अब देखें यहाँ पर, अब आपने क्या करना है नेगेटिव लॉग 10, तो आप क्या करें कैलकुलेटर में 4.11 पुट करने के बाद उसको लॉग 10 प्रेस कर दें, तो क्या वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो उसको आपने 7 माइनस प्लस माइनस, आप रूल जानते हैं मैथ का, तो 7 में से जो वैल्यू आएगी उसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वो कितनी 6.4। तो चूँकि +7 ज़्यादा इसकी वैल्यू है और वो जो लॉग 10 की वैल्यू बहुत कम आएगी, तो इस वहाँ पर pH आपको 6.4 प्लस में आप मेंशन करेंगे। ये आप क्या था pH के वाले से, ये आपका था pH के वाले से सेकंड न्यूमेरिकल। यहाँ मैं आपको एक और न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं, व्हाट इज़ द pH ऑफ 0.0004 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बड़ी दिलचस्प ये आप देखिए सिचुएशन है ये न्यूमेरिकल की। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो दिया आपको 0.004। तो अब आपने क्या करना है कि वो पावर में कन्वर्ट करना है, तो राइट साइड पर आप जो है वो पावर बढ़ाते जाएं। तो 0.000 है, तो आप यहाँ करें राइट साइड पर बढ़ाते जाएँ तो पावर 10⁻1 से बढ़ती चली जाएगी और 4 तक पहुँचेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। तो 4 × 10⁻4 जो है ये एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप जानते हैं जो अगर अब एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर आप pOH फाइंड आउट करेंगे। पहले आपने फाइंड आउट किया था एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन गुज़िश्ता 2 न्यूमेरिकल्स में, तो वहाँ पर आपने pH मेंशन किया, यहाँ आप मेंशन करेंगे pOH। pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग इंटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग, अब आप इसको वही वैल्यू पुट कर दें 4 × 10⁻4। ओके, तो वही सारी जो पहले आपने सॉल्यूशन जिस तरह से किया है सॉल्व किया है इसको, तो नेगेटिव लॉग 10 दोबारा मल्टीप्लाई करें अंदर की दोनों वैल्यू को, तो नेगेटिव लॉग 10 इंटू 10 माइनस लॉग 10 इंटू -4, लॉग की पावर नीचे आ जाएगी -4 इंटू -4 प्लस 4। ओके, लॉग 10 की वैल्यू 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग 10 4 की वैल्यू निकालेंगे, आप 4 के हो आप प्रेस करेंगे लॉग 10 जो भी आएगा उसको +4 में से माइनस करेंगे तो pH निकल जाएगी 3.398। अब आपके पास निकल आ गई क्या pOH। अब जरा गौर से सुने, आपको पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं pH प्लस pH इक्वल टू 14, ये पूरा स्केल होता है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी नो दैट pH प्लस pH इक्वल टू 14। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ pOH इन द अबव इक्वेशन,
pH प्लस pH 14, तो pH आपको फाइंड आउट करना है। pH तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 40 में से माइनस करें pH की वैल्यू, तो आपको निकल जाएगी pH। तो ये आपका यहाँ पर तीसरी टाइप का न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन कंप्लीट हुई है। ओके, थैंक्स।